Hello and welcome you all on our channel. Today we are going to solve sample paper 2025-26. So let's start. As you can see here, sample paper I have taken. So there is no changes. There is no changes in our sample paper, in our English question paper. As we have solved the previous question paper, the same pattern here CBSE given this year sample paper. So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का तो आप उसको फटाफट देख लीजिए. कोई चेंजेस नहीं है, सेम पेपर पैटर्न हमारे पास सैंपल पेपर का है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स स्टार्ट करते हैं. तो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द ग्रामर सेक्शन बी, ग्रामर सेक्शन. इन द बी सेक्शन देयर आर राइटिंग स्किल इन द ग्रामर सेक्शन. 10 marks, 20 marks. This section for the 20 marks, 10 marks for grammar and 10 marks for the creative writing. So 10 marks grammar question paper. Today we will solve the grammar for 10 marks. Grammar question for the 10 marks. So in the grammar section there will be 12 questions and you have to solve 10 out of 12. तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी 12 क्वेश्चन रहेंगे. ये सेक्शन के ग्रामर पार्ट के 12 क्वेश्चन रहेंगे. उस 12 में से आपको केवल 10 करते हैं. तो 10 ही क्वेश्चन को आपको करना है. कोई भी 2 जो आपको कठिन लगे, जिसमें आपको डाउट हो, जो आपको वो आप छोड़ सकते हो. जिसमें डाउट लगे, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, वो क्वेश्चन आप कोई भी 2 छोड़ सकते हो. तो पहले 12 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. जब आपको लगे कि हाँ ये इसमें हमें कंफ्यूजन है, वो दोनों आप छोड़ सकते हैं. कोई बात नहीं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन 3. फ्रॉम द क्वेश्चन 3 योर ग्रामर सेक्शन विल स्टार्ट. Question 1 and 2 reading part and 3 from the grammar. Complete any 10 of 12 of the following tasks as directed. Okay? Any 10 of 12 it is given here in the question paper. So the first question is fill in the blanks by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of a market research. So here the question is the special subscription of newspapers are well dash illustrate in bracket given illustrate to make the reading interesting for school students. So here as it is instruction given correct form of word. So here we have to are well illustrated means here we will the correct answer is the illustrated for one question. Illustrated. It is the past participle. Third form of the verb we have used here third form of the verb of illustrate as a passive form of the sentence. Here, if you will use of newspapers are well illustrated to make the then it is the make sense of the passive form. In the passive form sentence, we will use third form of the verb. Now I hope this clear. Now look at the next question. Identify the error and write the correction in the given sentence from a life skill book. Means here you have to error and correction based question. Means for the given sentence एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, उसको आप पढ़ेंगे और उसमें आप एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. तो here the sentence given the road to success is not the bed of roses. If you have heard it is a very easy phrasal verb. A bed of rose means easy work. जब भी कोई आसान है, it is not the bed of rose. आसान काम के लिए हम यूज करते हैं a bed of rose. तो यहाँ पे क्या हो गया आपका एरर क्या हो गया the. क्या नहीं होगा the नहीं होगा. तो आपका एरर क्या हो गया यहाँ पे एरर हो गया आपका the. करेक्शन हो गया अब करेक्शन हो गया अब. आई होप इट विल बी क्लियर. Clear the error the and correction up. Next third question. Fill in the blanks with the correct form of verb given in the brackets. Here the correct form of the verb from the text this question given. So let me read the sentence. I am so happy to see my place again. They dash grow in bracket given grow so much
since I last saw them. So this sentence, as you can see here, this is the sentence. I'm so happy to see my. They have grown. In the perfect present perfect tense, we have they have grown so much since I last saw. Mean the very word the since and for or the last past were given. Then the so here the third answer will be have grown. I hope it will be clear. Have grown. Fourth one, read the given statement. They said to the guide, we would love to come here again next year. From the reported speech. This is the in sample paper question given in the previous year's question paper where I have given you the solution. There are 3 questions from the reported speech, and in this sample paper again 3 questions. CBSE also given the sample paper 3 questions. So this topic is very important student. अगर आपने अभी तक ये टॉपिक नहीं प्रिपेयर किया है तो इसके रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड किया है, वो उसको आप फटाफट देख लीजिए, आपके बेसिक डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। यहाँ पे हम आपको आंसर बताएंगे कनेक्शन के साथ कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट। दे सेड टू द गाइड, वी वुड लव टू कम हियर अगेन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर को आप किसमें चेंज किया जाता है? सेड टू द गाइड if the reported subject of reporting work and object of the reporting work given, then said to will change into told. क्या हो जाएगा? They told the guide that would. would का कोई चेंजेस नहीं होता, यहाँ पे ऑलरेडी would है तो क्या हो जाएगा? They would love to come, क्या हो जाएगा? To go. Let me write the answer. They told the guide. ध्यान दीजिए, आप जो गलती करते हैं बार बार सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, आप टोल्ड टू करते हैं। जब आप टोल्ड टू करेंगे तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा और एग्जाम में आपके मार्क्स कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये आपको नहीं करना है। ध्यान दीजिए कि सेड टू को ही टोल्ड में बदलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लगाते हैं कंजंक्शन दैट, वो आपका यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, बिजनेस पार्ट आपको करना है। तो सब्जेक्ट दे वुड का वुड ही रहेगा। दे वुड लव टू गो, कम का क्या हो जाता है? गो। टू गो देयर, टू गो देयर अगेन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आई होप इट विल बी क्लियर। और इसके बाद भी अगर आपको डाउट है, आप देखना चाहते हैं सेपरेट, आप सो मेनी एग्जांपल एंड सो मेनी सेपरेट क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर रिलेटेड टू द रिपोर्टेड स्पीच आई हैड अपलोडेड 10 नंबर पक्के वीडियो, उसमें आप जाकर के इसको देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के किस तरह से और कैसे कैसे कन्वर्सेशन के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूजन ऑफ अ लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन गिवन और वो क्या है आपका? टू कंप्लीट द कंक्लूजन ऑफ अ लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। लेटर फॉर्मल लेटर राइटिंग आपके सिलेबस में भी है, आपने पढ़ा भी है। तो यहाँ पे जो हम कंक्लूजन लिखते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग के प्लेसिंग ऑर्डर में, वहां से आपको फिल करना, ये आपको आइडिया दे सकता है। देखिए यहाँ पे देयर वुड बी नो कंप्रोमाइज दैट द क्वालिटी ऑफ आइटम सप्लाइड, सो देयर वुड बी नो कंप्रोमाइज। तो क्या रिगार्डलेस क्या होगा? डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ। फिफ्थ वन, regarding and it is the D option. D option will be right. I hope it will be clear. Next, now the sixth question. Let's move toward the sixth question. Again, from the reported speech. Again, आप देख सकते हैं कि बार बार फिर आपका दूसरा क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर से। तो ये चैप्टर आप जान सकते हैं, सैंपल पेपर में भी बताया जा रहा है कि आपका ये चैप्टर 10th चैप्टर और रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ग्रामर पार्ट सॉल्व करने में 10 में 10 नंबर लाने, थोड़े से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से 10 में 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं। डोंट ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स योरसेल्फ, शी वार्नड हिम। अब आपका ये क्वेश्चन ही बता रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब ही बता रहा है कि ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, इंपरेटिव है। डोंट इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब हमारा इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, अब यहाँ देखिए आपका रिपोर्टिंग पार्ट दिया हुआ है, शी वार्नड हिम, शी वार्नड हिम। तो जब हम इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, शी वार्नड हिम नॉट टू, क्या लगाते हैं, नॉट टू, डोंट को किसमें लगा देंगे, नॉट टू ट्राई मेंडिंग, नॉट टू ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर योरसेल्फ। ठीक है, तो जब भी इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम क्या करें, नेगेटिव होगा तो नॉट टू करेंगे, और अगर नेगेटिव ना होता तो क्या करते थे, टू ट्राई। तो कंजक्शन क्या हो जाता है, ये भी आप याद रखिए, इंपरेटिव सेंटेंस का कंजक्शन क्या होता है, टू होता है। मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि कंजक्शन क्या होता है। ठीक है, नाउ आई होप इट विल बी क्लियर, ऑल द आंसर विल बी क्लियर। सो नाउ लुक टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7. ओके, so question number 7, complete the given option by filling the blanks with correct option. तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको ब्लैंक में आपको फिल करना है विद द करेक्ट ऑप्शन। तो द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग द मूवी लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एम्पैथेटिक टू अदर्स। तो फेल्ट मी, हैविंग फेल्ट, फीलिंग फेल्ट, फील। आप एक बार सेंटेंस को पढ़ के देखिए कि कौन सा सेंटेंस उसमें सुटेबल लगता है, सेंस बनाता है, आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। जिसमें क्या, द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग द मूवी लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फीलिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे 7 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, फीलिंग। ओके, तो फीलिंग। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8, द गिवन क्वेश्चन हैज एन एरर, select the option that correctly identifies the error and the correction। अभी आप देखिए इस सैंपल पेपर में ये दूसरा क्वेश्चन है, एरर एंड करेक्शन। तो एरर एंड करेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपके छोटे छोटे जो डाउट है, जो भी चैप्टर है लाइक डिटरमिनर, मॉडल वर्ब और आपकी जो सब्जेक्ट वर्ब कन्वर्ट है, ये चैप्टर को आप ध्यान में रखते हुए कि फिलिंग द ब्लैंक और आपके एरर एंड करेक्शन, इस चैप्टर से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। तो ये क्वेश्चन आप ये माइंड में रखते हैं, उसको जरूर पढ़ लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। अभी देखते हैं इसका इसमें क्या ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट। अगेन आई विल रीड दिस, विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट। आपको एरर समझ में आया, आ गया होगा। विच काइंड ऑफ पर्सन तो आता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये विच काइंड ऑफ पर्सन आपका एरर हो गया। करेक्शन क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, यहाँ पे क्या आता है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन। ये सब मैंने बताया है ऑलरेडी। यहाँ पे आपका एरर ऑप्शन ए होगा, इसमें एरर होगा आपका विच एंड करेक्शन हाँ हो गया वॉच। ओके, नाउ लुक एट द 9th क्वेश्चन 9, रिपोर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया रिपोर्टेड स्पीच। फिर आपका ये क्वेश्चन भी रिपोर्टेड स्पीच से ही लिया गया है। तो शी सेड टू हर सिस्टर, आर यू ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे। अब देखिए यहाँ पे क्या समझने की जरूरत है आपको, इफ योर रिपोर्टेड स्पीच आस्किंग अ क्वेश्चन मीन, तो आपको क्या रिपोर्टिंग वर्ब, इन दैट केस योर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज चेंज्ड इनटू आस्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या तुरंत आपको क्वेश्चन जैसे ही आपको लगे रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन है तो चुपचाप आपको क्या करना है, अब पूरे सेंटेंस आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। तो आप क्या कर दोगे, सेड शी आस्क्ड, क्वेश्चन 9 आप क्या करेंगे, शी आस्क्ड हर सिस्टर। फिर से बता रहे हैं कि आप सेड टू इज चेंज इनटू आस्क इफ रिपोर्टेड स्पीच आस्किंग अ क्वेश्चन। तो हर सिस्टर, देन अब कंजक्शन की बात आ रही है। तो जब भी आपका कंजक्शन अगर
reported speech. There are two types of reported speech. First one begins with the auxiliary verb, means the helping verb, and second types of interrogative sentence begin with the WH verb. So here, as it is given in the question paper, in this question paper, sample question paper, this sentence begins with the auxiliary verb. तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? Conjunction if. अगर ये वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड से सेकंड टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, तो तब यहाँ पे हम कंजंक्शन इफ या वेदर नहीं लगाते हैं, बल्कि वही वर्ड, वही शब्द, वही इंट्रोगेटिव वर्ड जो कि सेंटेंस में दिया होता है, वही हमारा कंजंक्शन का काम करता है। ये बात जरूर याद रखिएगा। हमने जहाँ पे इंट्रोगेटिव पार्ट पढ़ाया है वहाँ पे इसको डिटेल में समझाया है। बात जाके फिर से आप उसको देख सकते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम आंसर की बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपका डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव दिया हुआ है, उसको हम इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? आर यू, यू किस में आता है? अकॉर्डिंग टू द, यू कैसे चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्क। यहाँ पे यू क्या हो जाएगा? शी। ऑब्जेक्ट क्या है? सिस्टर, तो क्या हो जाएगा? शी। आर यू, ये क्या हो जाएगा? शी है, अकॉर्डिंग टू शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या आ जाएगा? वॉज। अब हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एग्जांपल है, हम इसको क्या करेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस, अब असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। वॉज ज्वाइनिंग देन, आज को क्या चेंज करेंगे? ध्यान दीजिएगा, अस है ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे, तो ज्वाइनिंग देम फॉर लंच टुडे चेंज इनटू दैट डे। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। She asked her sister if she was joining them for lunch that day. All the changes I have described here, so it is clear for you. Now look toward the next 10. Now the question 10 will be solved. Fill in the blanks. Question है, sorry. Filling the blanks with the correct option from those given in the brackets. Okay? फिर यहाँ पे filling the blanks टाइप का क्वेश्चन आ गए आपके, और ये जो है, ये सेंटेंस जो है आपका लिया गया है, इससे लिया गया है कि ये है आपका मॉडल। यहाँ पे filling the blanks मस्ट, और भी आपने कहाँ पढ़ा है? मॉडल वर्ड में पढ़ा है। तो filling the blanks आता है, everyone is saying that Farhan's chances are bright in the upcoming tournament and she dash become the youngest football player ever. अब यहाँ पे मस्ट ब्रैकेट में दिया हुआ दो ऑप्शन, मस्ट और मे। तो यहाँ पे क्या है? कोई श्योरिटी तो है नहीं। आप फिर से पढ़िए, सेंस के अकॉर्डिंग वी विल ऑलवेज चूज द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। जब हम मॉडल वर्ड की बात आती है, जब हम कोई चीज चूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि मे, अगर उसने क्या कहा? चांसेस आर ब्राइट, यहाँ पे उसका चांस क्या? ब्राइट है। तो जब ब्राइट है तो क्या इसमें अपकमिंग टूर्नामेंट में उसमें क्या हो सकता है कि मे बिकम, शी मे बिकम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन 10 का शी मस्ट नाउन के यहाँ पे क्या हो जाएगा? मे विल बी करेक्ट ऑप्शन। नाउ देखते हैं नेक्स्ट वन, 11th क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस इन अ टीचर्स डायरी बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अभी यहाँ पे ये आपको करना है, टीचर डायरी क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश स्टूडेंट इन द क्लास सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। डैश स्टूडेंट इन द क्लास ऑल वन एवरी डे। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे देयर असाइनमेंट ऑन टाइम, यहाँ पे पूरा सेंटेंस को पहले पढ़िए। तो अगर सेंटेंस आप सही से पढ़ेंगे तो उसमें आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। दियर जब दिया हुआ है तो अ की बात आएगी, अ आपका कट जाएगा, वन भी इस तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एवरी स्टूडेंट, और कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? एवरी। यहाँ पे क्या हो गया आपका? 11th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है, और क्या हो गया? एवरी। यहाँ पे आपका एवरी। नाउ द नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। I looked inside the bucket and saw there was dash water in it, so that
So they had to add more to use. They had to add more to use. More से आपको अपने आप लग जाएगा कि क्या हो जाएगा वो लिटिल. यहाँ पे ऑप्शन आप जब एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा कि लिटिल मीन्स बहुत थोड़ा. तो लिटिल वाटर बहुत कम की बात जब होती है तो लिटिल आती है. A little and the little. तो यहाँ पे लिटिल की बात है तो I looked into the bucket and saw there was little water. ये अनकाउंटेबल वाटर क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है. यहाँ पे आपका 12th क्वेश्चन का आंसर हो गया. क्या हो गया आपका? A और क्या है? लिटिल. ये हो गया आपके 12th क्वेश्चन का आंसर. लिटिल आपका सही आंसर है. So student, these are the solution of the sample question paper of B section grammar part. All the 12 questions I have solved with explanation. If you have any doubt, you can write it in the comment box. For more videos like this, you can subscribe my channel and don't forget to press bell icon so that you can get the notification if I upload any new video. Thanks for watching.